Good morning, students. How are you all? We will continue with solution of chapter number 9, Soil. Question number 6. Answer the following in one sentence. What is humus? Humus is the rotting dead matter in the soil. Humus क्या होता है? जो plants और animals soil के अंदर mix होते हैं ड्राई होने के बाद या तो फिर डेड होने के बाद, तो उसे डिकम्पोज करते हैं और सॉइल में मिक्स करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज रॉटिंग डेड मैटर इन द सॉइल. व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? जो हम सॉइल का वर्टिकल सेक्शन देखते हैं उसमें हमें जो डिफरेंट लेयर्स दिखाई देते हैं उसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Mention the component of soil composition. The component of soil composition are gravel, sand, clay and humus. Soil के compositions क्या क्या है? Gravels, sand, clay and humus. These are the different components of soil. Mention the main type of soil. There are 3 main types of soil: sandy soil, clayey soil and loamy soil. Number 5. What is the characteristics of the uppermost horizon of soil? The uppermost horizon of soil is generally dark in color as it is rich in humus and minerals. जो soil का upper horizon है, that is A horizon, is generally dark. वो dark होता है. क्यों? Because it is rich in humus and minerals. Question number 6. What is called bedrock? Below the sea horizon, the hard layer which is difficult to dig with a spade is called bedrock. Bedrock जो होता है वो sea horizon के नीचे होता है और उसके अंदर जो वो rocks होते हैं वो बहुत hard होते हैं, right? And it cannot be dug by a spade with a spade, right? So it is called as bedrock. What kind of soil should be used for making matkas and surahis? Black soil from barren land should be used for making matkas and surahis. जो मटके और सुराहीज है वो किससे बनते हैं? ब्लैक सॉइल जो बैरन लैंड में होते हैं, यानी जो हमारे एग्रीकल्चर के या फार्मिंग के यूज में नहीं होते हैं, वो सॉइल से हमें मटकास और सुराहीज बनाते हैं. How is clay soil useful for crops? Clay soil has good water retaining capacity as clay particles being smaller and packed tightly together. It is rich in humus and is fertile soil. Due to this, it is useful for growing crops like wheat, paddy, etc. जो clay soil होते हैं वो पानी को retain करके रखते हैं, यानी absorb करके उस खुद के अंदर ही रखते हैं, right? So it is having retaining capacity, यानी वो वाटर को होल्ड कर सकते हैं और उससे जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं. सो यही रीज़न से वाटर इजीली क्ले सॉइल में से आगे नहीं बढ़ सकते या तो फिर एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं, राइट? सो इट कैन नॉट बी रिमूव्ड आउट और इवेपोरेटेड इजीली. इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड इज़ फर्टाइल सॉइल. तो वो जो क्ले सॉइल होते हैं वो ह्यूमस में रिच होते हैं और this is the reason they are fertile. So due to this, it is useful in growing crops like wheat and paddy. What is the difference between rate of percolation and amount of water retained? Rate of percolation means the amount of water that takes time to drain in soil. यानी percolation means जितना टाइम सॉइल को पानी एब्जॉर्ब करने में लगता है उसे हम percolation rate कहते हैं. Whereas the amount of water retained means the efficiency of soil to retain amount of water from total percolating. यानी ये amount of water retain क्या होता है कि जो total percolating है उसमें से कितना water वो retain कर सकते हैं, that is called as that is called as वो amount of water retained यानी store किया हुआ है. Mention the importance of soil. The importance of soil is as follows. It supports the growth of plant by holding the roots firmly. वो plants को support करते हैं roots को hold करने में.
इट प्रोवाइड्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। वो क्या करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं। सॉइल इज होम फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स। सॉइल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। सॉइल जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स से लेके बड़े ऑर्गेनिजम्स के लिए वो होम है, राइट। सॉइल इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल हमें एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर अस। और एग्रीकल्चर है तो हमें खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं और हमें शेल्टर भी मिल रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द टॉपमोस्ट होरिजन ऑफ सॉइल यूजफुल? द टॉपमोस्ट होरिजन ऑफ सॉइल इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स। द ह्यूमस मेक्स the soil fertile. It provides nutrients to plants. So, good crop production can be achieved by agriculture. यानी जो ह्यूमस होता है वो सॉइल के अपर मोस्ट हॉरिजन में होता है, राइट, विथ मिनरल्स, एंड द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस जो है वो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, और फर्टाइल होने से वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है। So good crop production can be achieved by agriculture. It fulfills our food requirement. यानी इसे हम क्या कर सकते हैं, जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ा सकते हैं, राइट, एग्रीकल्चर के अंदर। इट फुलफिल्स आवर फूड रिक्वायरमेंट। क्रॉप्स अच्छे ग्रो होंगे, ज़्यादा ग्रो होंगे तो वो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। वेरियस ऑर्गेनिजम्स सच एज एंड्स, रोडेंट्स, मोल्स, बीटल्स, अर्थवर्म, माइक्रोब्स एक्सेट्रा along with bacteria inhabitant in the uppermost layer of the soil. Thus the uppermost layer of the soil is useful in many ways. यानी ये जो अपर सॉइल का जो लेयर होता है उसके ऊपर ही पूरा फॉरेस्ट होता है, और वो ही सॉइल के ऊपर बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स और उसके अंदर भी इंसेक्ट्स रहते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट it is also an inhabitant for microbes and bacteria. Thus the upper layer of the soil is very useful in many ways. Mention the properties of loamy soil. The properties of loamy soil are as follows. The animal of large sandy and fine clay particles are almost in the same proportion in it. यानी जो सैंडी सॉइल होता है, राइट, उसके अंदर सैंड के बड़े बड़े पीसेस यानी उसके बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। सो द अमाउंट ऑफ लार्ज सैंडी एंड फाइन क्लेई पार्टिकल्स आर ऑलमोस्ट इन द सेम प्रोपोर्शन इन इट। यानी क्लेई सॉइल कैसे बनाते हैं खेत में डालने के लिए, दोनों चीज़ों को, दोनों टाइप ऑफ सॉइल को आधा आधा करके उसे हम स्टोर कर सकते हैं। द लोमी सॉइल ऑल्सो हैज़ ह्यूमस। जो लोमी सॉइल है उसके अंदर भी ह्यूमस प्रेजेंट होता है। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज लोम। यानी जो टॉप क्वालिटी ऑफ प्लांट हमें ग्रो करनी है तो हमें लोम सॉइल में डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द डिफरेंस बिटवीन सैंडी सॉइल एंड लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज एंड सैंड्स पार्टिकल। यानी ये जो सैंडी सॉइल होता है उसके अंदर ग्रेटर प्रोपोगेशन यानी ज़्यादा मात्रा में सैंड पार्टिकल्स पाए जाते हैं। लोमी सॉइल इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। जो लोमी सॉइल है वो क्या है, मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड पार्टिकल्स। पर्कोलेशन रेट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट इन इट। यानी पर्कोलेशन रेट ज़्यादा है सैंडी सॉइल में। पर्कोलेशन रेट ऑफ वाटर इज मीडियम इन इट। यानी लोमी सॉइल में मीडियम होते हैं। वाटर बीइंग कैपेसिटी ऑफ इट इज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इट इज मिनिमम, राइट। सैंडी सॉइल की जो वाटर कैपेसिटी होती है होल्ड करने की वो कम होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इट इज मीडियम। यानी लोमी सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो मीडियम है। इट इज कंसिडर्ड एज द लोअर क्लास ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। यानी ये जो सैंडी सॉइल होता है वो लोअर क्लास होता है सॉइल ग्रोइंग ग्रुप के अंदर। इट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट। यानी ये जो सॉइल लोमी सॉइल है
वो ग्रोइंग प्लांट्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है, राइट, एंड इट इज़ अ बेस्ट सॉइल. Explain giving scientific reason. Soil erosion is less in the forest area. In the forest area, there are dense trees. Forest area में क्या है? Dense trees है. Wind and water are also major factor for soil erosion. और दूसरा ऑप्शन क्या है कि जो बारिश नहीं पड़ेगी या तो फिर जीन्स नहीं मिलेंगे. So that is the one bad effect of soil erosion. The dense cover for trees on the land can tolerate the blow of rainfall. यानी जो the dense cover of trees है, यानी जो एरिया में densely covered है trees बड़े बड़े, right? So tolerate and can tolerate the blow of and can tolerate the blow of heavy rainfall. यानी ये जो dense cave होते हैं वो trees के भी लोड को ले सकते हैं और टॉयलेट एयर का भी टॉलरेट द ब्लो ऑफ हैवी रेनफॉल. यानी डेंस ट्रीज होंगे तो वो रेनफॉल को अच्छी तरह फाइट कर सकते हैं. द रूट सिस्टम ऑफ ट्रीज बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स फर्मली. तो जो रूट सिस्टम होते हैं सॉइल के वो रूट्स को अच्छे से के बांध के रखते हैं सॉइल के साथ. ड्यू टू ट्रीज the flow of wind and water becomes slow. यानी ये ट्रीज की वजह से विंड का आना भी थोड़ा रुक जाता है और पानी भी रुक सकता है. Hence the soil erosion is less in the forest area. Number 2, irrigation is often required to crop in sandy soil. Sandy soil, the proportion of sand particles is greater. In sandy soil, children, remember one thing, that the proportion of sandy soil sand particles is greater. Sand particles are large. Sand particles कैसे होते हैं? बहुत large होते हैं. हम अपनी naked eye से भी देख सकते हैं. They cannot fit closely together. So the space between the sand particles, so water can drain quickly. समझो कि हमने बड़े बड़े टुकड़े डाले मटकी के अंदर, ओके, तो वो क्या होगा, वो पानी उससे बाहर निकल जाएगा, राइट. ओके, नेक्स्ट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी लेस एंड सैंडी सॉइल इज रादर ड्राई. जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सैंडी सॉइल की वो बहुत कम होती है और वो जल्दी ठंडी भी हो जाती है, राइट. सो इट कैन बिकम ड्राई इजीली. सो फॉर द क्रॉप इन सैंडी सॉइल इरिगेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. तो यही वजह है कि सैंडी सॉइल में इरिगेशन हमें नहीं चाहिए, राइट. सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड. नेक्स्ट, answer the following in long sentence. Mention the two properties of clay soil. The properties of clay soil are as follows. It has a greater proportion of clay particle. The clay particles are smaller in size. Clay particles being much smaller packed tightly, therefore leaving little the space for air. Okay. The properties of clay soil are first, it has greater proportion of clay particles. यानी ज़्यादा इसमें clay particles हमें मिलते हैं. clay particles बहुत ही छोटी छोटी साइज में होते हैं, very tiny. clay particles being much smaller packed tightly together, leaving the little space by air. Water can be held in the tiny gaps between the particles of clay. यानी जो क्लेई सॉइल होता है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो वो होटल गैप जो होता है जहाँ से एयर पॉकेट्स बनते हैं तो वो रिप्लेस करके उधर पानी भी भर सकते हैं सब प्लांट्स को ग्रो करने के लिए. सो क्लेई सॉइल इज हैवी पेट्रोलियम. सो क्लेई सॉइल इज हैवी. परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इज लीस्ट इन क्लेई सॉइल, but water retaining efficiency is high.
परकोलेशन रेट जो होता है वो कम होता है, राइट, और उसके सामने क्या ज़्यादा होता है, राइट. सो बट वाटर रिटेन एफिशिएंसी इज हाई, तो पानी उसकी रिटेन करने की एनर्जी ज़्यादा होती है. ड्यू टू ह्यूमस बिकम स्लिपरी इन मानसून एंड waterlogging for long time. So due to humus it becomes slippery, यानी ह्यूमस के प्रेजेंस की वजह से वो स्लिपरी हो जाता है. और मॉनसून के अंदर उसकी भी एक अलग से हम गड़ी रखते हैं, उसमें देख के बताते हैं, राइट. सो बिकम्स स्लिपरी इन मॉनसून एंड वाटर लॉगिंग फॉर लॉन्ग टाइम, यानी उससे क्या होता है, वाटर लॉगिंग यानी पानी उसके अंदर भरा रह सकता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. इन समर इट बिकम वेरी ड्राई एंड क्रैक एज फॉर्म्ड इन इट. प्लोइंग इज क्वाइट डिफिकल्ट इन सच सॉइल, यानी ये जो सॉइल होती है वो बहुत कॉम्पैक्ट होती है, एक दूसरे को चिपक के रहती है, तो वो बहुत हार्ड हो जाती है. तो जब उसे प्लो करना होता है तो वो इजीली प्लो नहीं कर पाते हैं, राइट. नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड. Soil is formed by breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. Soil कैसे बनती है, जब बड़े बड़े रॉक्स नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि विंड, एयर, वाटर से उसे टच करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेदरिंग. तो जब ये वेदरिंग होता है तब सॉइल फॉर्मेशन होना शुरू होता है. क्रैक्स आर फॉर्म्ड इन रॉक्स बाय एक्सेस हीट स्पेशली इन समर, यानी समर के अंदर वो एक्सेसिव हीट निकालते हैं compared to winter and rainy. Such cracks widen slowly and slowly. तो इससे क्या होता है, slowly by slowly जो वो cuts breaks होते हैं वो broad होते हैं. Heavy rains, flow of water, wind, waves of sea water etc. are responsible for wear and tear of rock. तो रॉक की ये हालत के पीछे सब नेचुरल कैलामिटीज रिस्पॉन्सिबल है. The big and heavy rock are broken into smaller pieces and come on the earth's surface. The smaller particles maximum with decomposed part of dead plant or animal, thus soil is formed.